Very old friend of mine, sir. I take pride in saying that, sir. We used to hang around together and he's sitting there. So it is a very happy moment for me that my childhood friend is sitting there, sir. I'm very happy about it. And I feel very proud also. कि लोग हमको बोलते थे, अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये खाली फिरते रहते हैं, देखो एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा वहाँ बैठा है. So, I mean, sir, education is very important, sir. So I request that the Congress government takes this issue very seriously and focus on this education, sir. So yes, sir. This socio-economics, sir. Page number 293, sir. Page number 293, sir. Out of the total enrollment of 62,30,504, the dropout is 26.17%, sir. 26.17, and the numbers are 16,30,524. Very big numbers, sir. I think you need to see this. Bachon ke education, sir, this is why, sir, I think we need to release this, ये MTF या RTF का जो पैसा है, इसको installment में दीजिए. Sir, the problem here is that, sir, we run an education institutions also, sir. MIM party has an education trust, which has a medical college, engineering college, MBA, MCA, pharmacy, architecture, and nursing college, physiotherapy college. So many colleges are there. Honorable Speaker, sir, I take care of all the education institute of Darussalam Education Trust, sir. Sir, you would be surprised, sir, the total fees dues for all these colleges is more than 76 crores, sir. So 76 crores are due from the scholarship. More than 20 crores are due from Arogyashri. 100 crores is due by the government. And still, we do not refuse any patient for getting treated under Arogyashri, nor we refuse any student, sir. Sir, you please tell me, how will an institute, how will a trust survive with 100 crores dues? Sir, I have my heart open for the students, but at the same time, the government needs to realize how will the colleges run if they are not being paid the money. How will they run, sir? Kindly understand, sir. Sir, I know the financial situation of the state. Sir, I would say that we can just have a meeting with all the education institutes, and we can have a roadmap as to how we would be clearing this amount. Let us take 2 years, 2.5 years, but some assurance needs to be given कि installments में आपको देंगे पैसे, करेंगे इसको. Sir, now what is happening? The institute are holding back the certificates of the students who have completed their course. Sir, if they give the certificate, sir, earlier what happened, sir? For the year 2018, all the scholarships were rejected by the BRS government. बोल दिए कि हम ये साल का scholarship नहीं दे रहे, and the colleges had to lose that fees, and the student took the certificates and went away. Recently, Honorable Chief Minister Saab had a meeting with the technical education colleges, management and everything. He spoke to them and he said, don't worry, we will clear all the arrears of 24 and 25. My friend is very intelligent. He said 24, 25. He never said, what about 23? He never said about 22. He never said about 21. He never said about 20 and 18. Sir, Honorable CM, sir, the government is a government, sir. And a decision taken by the government is a decision which today A is there, tomorrow B will be there. It has to be continued, sir. Sir, we have to. Sir, they gave an assurance. The students believed them. The colleges trusted their word. If you say, I have to ask them, where will they get it and give, sir? How will they give, sir? तो ले लेते हैं सर, आप हम कुछ बना तो ठीक है सर, we will forget Adani, we will go here then. Sir,
I request, sir, please, sir, about medical and health, sir. Sir, national health policy says that 8% of state budget should be allocated for health department. As per the World Health Organization requirement, the government has to increase the budget allocation on health to at least 2.5% of GSDP to meet its objective requirement of 3.5 beds per 1,000 people, sir. Sir, this is very important. So, Honorable Speaker, sir, there are some guidelines, sir, which needs to be followed to have a good health care, sir. So, uske liye ye hai, sir, 3.5 beds for 1,000 people, sir. We need to follow these guidelines. Sir, none had followed these guidelines, sir. I remember when I was a member of Assembly in Andhra Pradesh, sir, then Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Sahib was the Chief Minister. He also was a medical graduate. He was an MBBS. He was a doctor. When I spoke to him and I told him what does the World Health Organization requirement says, what are the laid down norms, then he said, Akbar, you're very right. It's very good. Kindly give me that paper. From today, my government will start working on this, sir. So we need to work on this, sir. Sir, like खुदा ना खास्ता अगर फिर से कोविड की जैसी बीमारी अगर आती है, we should not lose life, sir. Life is very precious, sir. I know what life is. I know what life is, sir. जिंदगी की कीमत क्या है मुझे मालूम, sir. I know it. I have seen death, sir, and I came back. Sir, we have to protect life, sir. Sir, slowly we can start. Increase the allocation in the health sector, and slowly we can go, sir. And we have been demanding and requesting about Osmania Hospital, sir. Sir, Osmania Hospital is the lifeline for the sick and ill patients of whole city. Musi ke us par. Sir, Osmania का कुछ करिए, sir. Osmania दवाखाने को बनाइए, sir. उसको revive करिए, sir. It's a beautiful structure, sir. मुख्यमंत्री थैंक यू सर. अकबरुद्दीन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है. अकबर साहब ने कहा, मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ. 10 साल गलत दोस्ती करने की वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया. अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर, इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी. दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी. हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी. मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीजन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ. मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है. राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया. राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 crores he has given. That is how we have got Hyderabad metro. सेकेंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एल&टी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की. गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर एग्रीमेंट में है.
उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाया। मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे वो लोग LNT से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं MIM सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम LNT से बात किए। मगर LNT पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे। मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं LNT कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बदकिस्मती है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई, आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो। क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हैतनगर तक दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज 2।
ये 78 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेज चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे। सर इसीलिए जॉइंट वेंचर JV model between central and state government, this is point number 1. The agency is going to take up this work, joint venture with government of India and as well state government. उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है और 45% लोन आउट ऑफ FRBM। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे और 5% PPP मॉडल, ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं। अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है। ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरा टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है, मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद सर। अकबर साहब। Honorable Speaker, sir, for a change we had a lot of lighter moments and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। Sir, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes. When Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket
as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if we have to see Sri Salla. Sir, in Sri Salla, K.T. Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं. लेकिन sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. Sir, going further ahead, sir. In education, I'll conclude, sir. Sir, in polytechnic colleges, sir, there are 56 institutes. The sanctioned posts are 1,675, and the vacancy is 48%, sir. In junior colleges, the vacancies are 85%. Degree colleges, the vacancy is 70%. Universities, the vacancy is 68%, sir. So the vacancies in these colleges are 74%, and I hope and I believe and I trust that the Congress government would look into this and try to fill in the vacancies, sir. Sir, as per the RTI information which I received, sir, which through you I would like to bring to the kind notice of the government is that, sir, so the total number of schools are 26,065, sir. वो election से पहले कुछ करे थे, वो schools का क्या था, कुछ program करे थे. I'm just हाँ मानववाड़ी हाँ साहब मानववाड़ी प्रोग्राम करे, वो क्या प्रोग्राम हुआ, किधर पैसे गए, क्या काम हुआ, कुछ नहीं मालूम. I was just coming, the contractor said, sir, वो प्रोग्राम कराए, अब तक पैसे नहीं दिए. जरा उनके भी पैसों का देखिए साहब. And the shocking figures are, sir. So the drinking water facility available in 24,000, sir. If we have to see, sir, the drinking water, there are more than 10% schools जहाँ पे drinking water is not there. Compound walls, sir, schools में नहीं है, are 34%. Sir, electricity जो schools में नहीं है 6%. Playground जहाँ नहीं है वहाँ 40%. Computer rooms जहाँ नहीं है 38%. Toilets जहाँ नहीं है 12%. Additional classrooms 8%. Science lab जहाँ नहीं है वहाँ पे 79%, sir. Sir, so I would like to come on record and request the government of the day to kindly take special importance on education sector, sir. It has been neglected, sir. The literacy rate has come down, and this BRS has really neglected, sir. And finally, going ahead, sir, I would like to speak and conclude by saying about the Waqf Board, sir. Waqf Board and the Home Department, I would say, sir. Sir, Waqf Board. मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर भी आपके हाथ में है. सर, ये वक्फ बोर्ड का एक ऑफिसर है जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में 22 साल से है, सर. 22 years, sir. 22 years, sir, he is into minority welfare department. अब बड़े लोग पूरा पुश कर रहे हैं कि ये 22 years से जो माइनॉरिटी ऑफिसर है, he is in charge of minority welfare, he is in charge of हज, he is in charge of वक्फ बोर्ड, उसको इंचार्ज एडिशनल दे दिए. सर, 22 साल से है. ऑफिसर्स ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट जाते हैं. मैं नाम लेना नहीं चाहता ऑफिसर का, इट इज नॉट राइट. But 22 years, sir, he is going to be now he wants to become a CEO now. He wants to become a CEO, sir. Sir, you would be surprised, sir, there is one work property at Abbots by the name Moin Manzil, Honorable Speaker, sir. Through you, I would like to bring to the notice of the Honorable CM Saab
सीएम साहब, आपको सुन के हैरत होगी कि एबिट्स पे एक मोइन मंजिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कोर्ट से स्टे लिया. वक्फ बोर्ड in collusion with the people who want to take that property which was registered work property, which I went to the court and I cancelled the registration. तो इसके stay मिला, registration cancel हुई. Work board and that owner, they make me a party and they went to the court. Sir, I was in London, I got information. मुझे पार्टी बनाए. वो अच्छा हुआ कि मैं अपने वकील को बोल के वहां गया. The chief justice gave left and right to the work board counsel, sir. Left and right. How do you bring the Akbar Owaisi's name in this? How can you ask about Akbar Owaisi? No, and he dismissed the petition, sir. Sir, इस तरीके से पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह बर्बाद हो रहे हैं सर. वक्फ के प्रॉपर्टीज, they've lost the case, sir. Viceroy Hotel House Committee, sir, in spite of having all the documents which prove that the Viceroy Hotel is a property owned by Waqf, the Waqf board had lost the case, sir. Ali Saad Ashur Khane ka gaya, Mamit Palli, sir, there's a line of cases, sir. Sir, through you, I request the Honorable Chief Minister Saab, sir, I had been demanding that a CBCID inquiry should be ordered, and the BRS government had ordered a CBCID inquiry on Waqf properties, on Waqf board, sir. I request you to please call the CBCID department people and ask them till where have they reached, what is the findings, who are the people, कौन है वो लोग जो वक्फ की जायदाद को तबाह करे, बेचे. उन सारे लोगों को हथकड़ी डाल के जेल में भी जाना साहब. अब तक सीबीसीआईडी की रिपोर्ट इंक्वायरी क्या हुई साहब? मुतवल्ली बना दे रहे. ये जिसको देखो ओट आता बोल के दे रहे. लेफ्ट एंड राइट, सर, वी आर लूजिंग केसेस. सर, you please find out, sir, the ministry comes under you, sir, Honorable CM, sir. Please call and ask them how many cases the Waqf board has lost in 1 year, sir. They have lost all major cases, sir. Guttala Begumpet, they have lost it, sir. Waqf board, they are just losing left and right, sir. Sir, you need to constitute the Waqf board, sir. I am telling you, sir, if the Waqf properties are protected, sir, you need not give anything to Muslims, sir. The Waqf board can take care of the Muslims. Their poverty they can be finished, sir. Education का, employment का, हर एक चीज का जवाब Waqf board में है, sir. Please, sir, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये Waqf board का देखिए, तबाही और बर्बादी हो रही है. जेल में डालिए साहब इन लोगों को जो अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जमीन को बेचे. Sir, from last 25 years, sir, I am fighting, screaming, shouting for protection of Waqf land, sir. Sir, through you, I kindly, humbly, I plead and I request that please protect the Waqf properties, sir. Please protect. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, sir. This is the property of Allah, sir. Almighty Allah, sir. When they were agitating for Telangana, sir, with me, the BRS went to the court stating that Hussain Shah Wali Dargah land 1,600 acres is a Waqf land. They were party with me. The TRS, KCR Saab was there. Sir, we got an order in our favor stating that that land is there. This TRS government, which claims to be the champions of minorities, yehi government Supreme Court may gave an affidavit stating that this land doesn't belong to Waqf board, sir. I went to the Supreme Court also. We fought and we lost the case, sir. Sir, I request, sir, please protect the Waqf properties, sir. सर, वक्त प्रॉपर्टीज पे अगर कोई बिल्डिंग्स आ गए हैं तो मैं वो बिल्डिंग्स को खाली कराऊं नहीं बोलूंगा आपको. आप वो जमीन किसी को अलॉट कर रहे हैं तो ले लो नहीं बोलूंगा. किराएदार बना दीजिए साहब, कुछ तो पैसा वक्फ बोर्ड को आने दीजिए, कुछ तो आने दीजिए. पूरी वक्त तबाह हो रही है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि एक मर्तबा देखिए. बस एक दिन ऑर्डर निकल गया, सरकार का हुक्म हो गया था केसीआर साहब का, रिकॉर्ड्स को लॉक डाल दो, लॉक बंद. Sir, nobody was also allowed to go and open the lock, see the records, fight the case. फिर मैं जाके लॉक को थोड़ा खोला जाकर, बोला कुछ नहीं. यह हाल था सर. बेशक साहब दोस्त थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है
कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाअल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं, हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है। हमने दोस्ती के जरिए मुसलमानों के लिए हासिल भी किया है, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी किया है। हां बेशक बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सारे काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आज देखेंगे तो हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है। सर, आई रिमेंबर सर, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस हाउस, द माइनॉरिटी बजट वाज ओनली 5 crore, सर। So I was just surprised. I was just surprised. Then to my surprise and to my happiness, it was made 29 crores. I was very happy, sir. But sir, चाहे राजशेखर रेड्डी से दोस्ती हो, हमने खुल के दोस्ती की। रोशैया से हो तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की। अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे। मगर एक बात है कि अगर आज 3000 करोड़ का बजट अगर मुसलमान अक़लियतों का अगर इस रियासत में है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3000 हुआ। अगर मजलिस ना होती तो शायद आज कुछ ना मिलता। रिजर्वेशन भी मिला, आई नो दैट, कि मजलिस की कामयाबी है। कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, there they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the need is that the presence of MIM is must for the welfare of the community and the justice for the Muslims. और मैं ये भी बात कहूंगा कि इनके दौर में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। आप वी शुड नॉट टॉलरेट। सर, यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock is the deadline. 9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it and I am going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who is there today, and the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई हैं बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा निकाले सर,
Police no sir, you're wrong, sir. My learned friend, you're wrong, sir. You're wrong, sir. Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court. And after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah because he's Amit Shah. बड़े भाई के भाई, बड़े भाई के भाई. अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है. खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है. पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है. पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप. लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है. सर, आई हैव द राइट टू लिव. I have the right to live. I have the freedom in this country. After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out their sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हालत कर दिए. पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा. मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा. तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर. पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता. गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं. क्या जुल्म है साहब ये. क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा. चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर. और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए. करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है. नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है. आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलरली बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द menace ऑफ दिस गांजा ड्रग सर. वी विल lend our full support sir. But let me tell you sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर. सब मालूम उनको सर, सब मालूम. लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए. इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए. हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे. और चीफ मिनिस्टर साहब, आप मौजूद नहीं थे तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए. बजट स्पीच में आना था ना साहब कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट. तो काइंडली सर इस पर देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा और यहां का जो पर कैपिटा आज है यह और आगे बढ़ेगा और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा. उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी, मेट्रो. और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से मेट्रो आई. हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते. लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए. और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब. मेट्रो आएगी यकीन है और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा. पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है और हम ताउन करेंगे. हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं. हम ऐसे दोस्त हैं
जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे, उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा, और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। శ్రీ కూనమనేని సాంబశివరావు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. 1 minute. స్పీకర్ సార్, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి మీద పెట్టిన కేసు పోలీసులకు వాళ్ళు తీసిన విషయము ఇవన్నీ కనుక్కుంటాము. అయితే వారు ఒక ఆరోపణ ఏదైతే చేసిండ్రో ఆ ఆరోపణ సరైనది కాదు. అమిత్ షా గారు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, బీజేపీ నాయకులు ఎన్నికల సందర్భంగా చిన్నపిల్లలతో ప్రచారం చేయించిందని ఫిర్యాదు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు జి నిరంజన్. నేను అధ్యక్షుడిని, ఆయన ఉపాధ్యక్షుడు. ఆ రోజు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించి చిన్నపిల్లలను ఎన్నికల ప్రచారంలో వినియోగించిందని అమిత్ షా గారి మీద, కిషన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు కట్టండి అని ఫిర్యాదు చేసిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ, నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న పార్టీ. ఆ ఫిర్యాదు మీద ఎఫ్ఐఆర్ పోలీసులు చేసి ఆ ఎఫ్ఐఆర్ విచారణ సందర్భంగా ఛార్జ్షీట్లో అక్కడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన నిర్వాహకుల మీద ఛార్జ్షీట్ వేసి అక్కడికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన అమిత్ షా అండ్ కిషన్ రెడ్డి గారిని ఆ ఎఫ్ఐఆర్లో నుంచి పోలీస్ అధికారులు తొలగించడం జరిగింది. తక్షణమే కాంగ్రెస్ పార్టీ తొలగించిన అధికారులకు వ్యతిరేకంగా కోర్టులో ఫైల్ చేసి కంప్లీట్గా వారిని కూడా ఇందులో కొనసాగించాల్సిందే, వారిని ఛార్జ్షీట్లో తొలగించడానికి వీల్లేదు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ న్యాయ పోరాటం మొదలుపెట్టింది. కాబట్టి ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి పెద్దన్న లాంటి వాడు. మీరు వివిధ రాష్ట్రాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం అనుమతులు, అభివృద్ధి కోసం నిధులు మీరు ఇవ్వండి, మీరు పెద్దన్న పాత్ర పోషించండి. ప్రధానమంత్రి అంటేనే పెద్దన్న, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులందరినీ సమానంగా చూడాలి. మీరు గుజరాత్ రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, మీరు ఉత్తరప్రదేశ్కి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, బీహార్లో మీ పొత్తుల ప్రభుత్వంలోకి ఏ విధంగా నిధులు తీసుకెళ్తున్నారో, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఆ విధంగా నిధులు ఇవ్వాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ₹1 పన్ను చెల్లిస్తే 43 పైసలే తిరిగి మాకు వస్తున్నాయి. అదే బీహార్ రాష్ట్రం నుంచి ₹1 పన్ను చెల్లిస్తే ₹7.26 తిరిగి బీహార్ రాష్ట్రానికి మీరు నిధులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్కు ₹6 పైచిలకు ₹1 ఉత్తరప్రదేశ్ కేంద్రానికి పన్నులు చెల్లిస్తే ₹6 పైగా ఉత్తరప్రదేశ్కు మీరు నిధులు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి వివక్ష చూపించకుండా ఒక పెద్దన్న తరహా రాష్ట్రాలను సమన్వయం చేసుకొని అభివృద్ధి చేయడానికి సహకరించండి అని నేను ఎక్కడో చెవిలో రహస్యంగా చెప్పలేదు అధ్యక్ష. ఆదిలాబాద్లో అక్కడనే మిత్రుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి. ఆదిలాబాద్లో